Good morning, beta. Today we'll see our new topic, that is free fall. You have not performed well in test. Please be careful in next test. It is not a 8th standard. In 9th standard you have to face little bit problem if you will not do study. Okay. Let's start with the topic free fall. Free इसके word में भी mention है बेटा. It is free. Free means suppose I have an object. When we will release an object from a height without applying any force, आपको कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करना है, जस्ट रिलीज करना है. When we will release an object from a height, it will reach to the ground. We are not applying any force, then there will not be any change in direction. डायरेक्शन में चेंज कब होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं, बट चेंज इन वेलोसिटी होगा वहाँ पे. ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स देर इज अ एक्सीलरेशन. वो बात की बात है. पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, इट विल रीच टू द ग्राउंड विदाउट अप्लाइंग एनी अनबैलेंस फोर्स. दिस इज नोन एज फ्री फॉल. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट without applying any force, only in the presence of force of earth, that is gravity, force of gravity, object will reach to the ground. That is known as free fall. Free fall of object means when object is released from a height without applying any unbalanced force, object will reach to the ground only in the effect of or presence of force applied by earth. मतलब सिंपल बेटा, अगर मैं यहाँ से रिलीज करूँगा, इस पर कोई भी फोर्स ना लगाऊँ, खाली इसको लीव करूँ यहाँ से, तो क्या होगा? ये ग्राउंड पे पहुँचेगा, बिकॉज अर्थ इज अप्लाइंग अ फोर्स, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो देयर विल नॉट एनी चेंज इन डायरेक्शन. वाई? कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है. नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, सिर्फ वन डायरेक्शन में जाएगा, बट देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज acceleration. Change in velocity is known as acceleration, and that acceleration is possible due to the force applied by earth. That acceleration is possible due to force applied by earth. That's why this acceleration is known as acceleration due to gravity. I am repeating again beta. When object is released from a height, it will reach to the ground without applying any unbalanced force. It will reach to the ground only in the presence of force applied by earth. So there will not be any change in a direction, but there will be a change in velocity, and change in velocity is known as acceleration, and here acceleration is possible due to the force applied by earth. That's why this acceleration is known as acceleration due to gravity, which is denoted by small g. So here acceleration is equal to acceleration due to gravity, or gravity of earth, which is denoted by small g. Now we will calculate the value of small g, whose value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसकी फिक्स वैल्यू है. ये ग्रेविटी अर्थ की है, मतलब अट्रैक्शन जो फोर्स है अर्थ का है. मून का अलग होगा, सन का अलग अलग, प्लैनेट्स के अलग स्मॉल जी होगा. वाई? क्योंकि हर प्लैनेट का अलग मास है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग होगा. इट्स मीन दैट हमारा जो वेट है अर्थ पे, वो अलग प्लैनेट्स पे दूसरा हो जाएगा. वो हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे. So here acceleration is known as acceleration due to gravity, which is denoted by small g. Small g is the gravity, जो अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, अर्थ का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, दैट इज अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो, which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी विल सी दैट ये वैल्यू आती कैसे, मीन्स वी विल कैलकुलेट द स्मॉल g. इन प्रीवियस लेसन you have studied F is equal to ma. According to Newton's second law, we have derived that formula, and in place of A, what we will write? G.
सो F इज इक्वल टू mg। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर और d स्क्वायर। ये चीज़ें हमने पढ़ा था इस लेसन में। हियर F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू gmm बाई r स्क्वायर। सो दैट पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। सो राइट डाउन mg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 एंड m2। अर्थ की ग्रेविटी है तो एक ऑब्जेक्ट होगा अर्थ का मास, दूसरा उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। अर्थ के मास को डिनोट करो कैपिटल M से एंड ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल m से, डिनोटेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये m एंड m कैंसल, ये कैपिटल R कैसे हुआ बता रहा हूँ बेटा, m एंड m कैंसल। सो G इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई r स्क्वायर। ओके, अब स्मॉल आर हम जनरली लेते हैं, हम अर्थ के केस में कैपिटल आर लेंगे। बट क्वेश्चन इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो हम रेडियस क्यों ले रहे हैं अर्थ का। ओके, सी हियर सपोज ये अर्थ है। सो अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ पे, सो इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितना होगी, सेंटर से एक फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, तो अट्रैक्शन सेंटर से है। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। हम अर्थ के ऊपर है तो सेंटर से हमारी डिस्टेंस उतना ही होगा बेटा जितना अर्थ का रेडियस है। समझ में आया, इसलिए हम यहाँ पे रेडियस लेंगे ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस और रेडियस सेम है। अब ये इसमें हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यूज, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10 टू द पावर 24। रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करो बेटा, आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। फर्स्ट 10 raised to minus 11, 10 raised to 24. So what you will get beta? Base same, power will be minus. So 24 minus 11 is 13. 10 raised to 13. Okay. ये है 10 raised to minus 6. 6 क्या हो जाएगा ऊपर जाके 10 raised to minus 6. So 10 raised to minus 11 पहले से है, 10 raised to 24 और ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to minus 6. So 11 and 6 सेम साइन, सो ऐड करो minus 17, 24 minus 17 you will get plus 7. So ये बचा आपका 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 7 होल डिवाइड बाई 6.4। अब ये आपकी वैल्यू बची बेटा। ओके, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट। जस्ट मल्टीप्लाई 6.7 इंटू 6, 6.7 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करो बेटा। व्हाट यू विल गेट द वैल्यू, here is one mistake, r स्क्वायर। सो ये 2 बार आएगा बेटा, 6 इंटू 10 टू द पावर 6, सॉरी r स्क्वायर। सो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 ट्वाइस। सो 10 टू द पावर 6 एक बार और माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ पे अब 10 raised to 7 नहीं बचेगा, आपका कितना बचेगा, 6 से 12 और 11 23। सो 10 माइनस 23 माइनस करेंगे तो ओनली 10 raised to 1 और वी कैन से दैट ओनली 10 बचेगा। r स्क्वायर वी हैव टू टेक, नॉट r। ओके बेटा, सो नाउ कैलकुलेट 6.7 इंटू 6, 6 7 जा 42, 40,
40.2 into 10. Now 6.4 into 6.4. When we will multiply, just try to solve it at home, you will get the value. 6.4 into 6.4, 40.496 beta. So here 40.96. So multiply by 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 402. It's mean that we have to divide 402 whole divide by 40.96. So when you will divide beta, so definitely you will get 9.81 something. So 1 को इग्नोर करेंगे तो आ जाएगा 9.8. तो ये हमारा वैल्यू है स्मॉल जी का. अगर ये एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो यू कैन कैलकुलेट, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड कैपिटल आर. ओके बेटा, थैंक यू.